Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Maths Epic Tube. Today I am with you to discuss about how we can convert recurring decimal into rational numbers. I mean कैसे हम recurring decimal को rational numbers में convert कर सकते हैं. As you know, we have already discussed in previous lecture the definition of terminating decimal and non-terminating decimals. Further, we have discussed two types which are recurring and non-recurring decimals. So, today we will start our lecture by revising the definition of recurring decimals. The definition is the non-terminating decimals in which one or more digits repeats indefinitely in decimal part. Recurring decimal वो decimals होंगे जिनमें decimal part के अंदर 1 digit या फिर बहुत सारे digit जो हैं वो repeat होंगे और ये ऐसे डेसिमल होंगे जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे यानी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। एंड सेकेंडली उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक डिजिट रिपीट हो सकता है या फिर मोर डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं यानी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.3 bar. Here the bar is on one digit. It means that the 3 digit is repeating many times. So we can write it as 0.333 up to so on. As you can see, 3 is repeating many times in decimal part. इसका डेसिमल पार्ट है, इसमें 3 जो है वो मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो ये डेसिमल जो है वो रेकरिंग डेसिमल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ 1.18 बार। Here the bar is on 2 digits. 2 digits are repeating many times. We can write it as 1.181818 so on. So these decimals are recurring decimal. Now we have very important note which is our main concern in this video. So the note is that all non-terminating and recurring decimals are rational numbers. हमने यहाँ पे ये शो करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स जो हैं वो कैसे रैशनल नंबर्स होते हैं यानी हम इनको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p एंड q बिलोंग करें सेट ऑफ इंटीजर से एंड q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो जो कि डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। हमने यहाँ पे यही देखना है क्या हम रेकरिंग डेसिमल्स को दो इंटीजर्स की फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आई मीन टू से कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका क्या मेथड होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल से। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 0.3 bar which can be written as 0.333 up to so on. यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। लेट x is equal to 0.333 up to so on एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। Now we will multiply it by 10 on both sides by considering only one digit is repeating। यानी यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो है वो 3 है, 1 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। सो हम जस्ट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय x 0.333 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 3.333 अप टू सो ऑन
एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे. So now we are going to subtract equation number 1 from equation number 2. Equation 2, equation 1. So 10x is equal to 3.333 up to so on. एंड यहाँ पे आएगी इक्वेशन नंबर 1. x is equal to 0.333 up to so on. So now we will subtract it. 10 minus 1x, यहाँ से आ जाएगा 9x which is equal to 3, and you can see after decimal point all digits are same in both equations, so here we will get 0 0 0. Now 9x is equal to 3, so 9 को डिवाइड कर देंगे 3/9 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. सो x is equal to 1/3. As you can see, we write 0.3333 up to so on. इसको हमने लिख लिया है 1/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में. यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि 1 एंड 3 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से. सो यही हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी. इससे ये हमें क्लियर हो गया है कि हम रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स. फर्दर वी विल सी टू एग्जांपल्स. So here are two more examples. 0.47. You can see the bar is only on 7. You can see 7 is repeating many times. Here we let x is equal to 0.4777 and multiply both sides by 10 to bring 4 before decimal point so that only repeating digits remains in decimal part. यहाँ पे हमने क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 4 को हम डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे ले आएंगे. ये इसलिए हम करेंगे ताकि डेसिमल के बाद हमारे पास सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स जो हैं वही बच जाएं. तो इससे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा 4.777 up to so on. So you can see here in equation 1 the 7 is repeating in decimal part. Now we multiply it by 10 because only one digit is repeating. So 10 से multiply कर देंगे 10 multiply by 10x which is equal to 4.777 up to so on multiply by 10. यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी. बाकी जो है वो सेम मेथड होगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ 90x विच इज़ इक्वल टू 43.000. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 90 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 43/90. ये फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. इससे हमें ये क्लियर हो गया कि 43 बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से एंड 90 विल आल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर. तो हमने 0.47 बार इसको लिख लिया है दो नंबर्स की, दो इंटीजर्स की फ्रैक्शन में, विच इज़ अ rational number. So 0.47 bar is a rational number because we write it as fraction of two integers. Similarly, we see example third which is 0.001 bar. Here you can see the bar is only on 3 digits. यानी जो बार है वो हमारे पास 001 पे है. जो रिपीटिंग डेसिमल है, डेसिमल में रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो हैं 001, अगेन 001, अगेन 001 अप टू सो ऑन. सो इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे.
Now the question is that why we multiply it by 1000. So here मैं आपकी यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर कर दूँ। हमने यहाँ 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो रिपीटिंग डिजिट्स थे वो हमारे पास 3 थे। यहाँ इस एग्जांपल में रिपीटिंग डिजिट जो था वो 1 था, सो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था इसको। अब यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट्स जो हैं वो 3 हैं, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 1000 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहाँ भी 1000 हो जाएगा राइट साइड पे, एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 999 एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 999 एक्स इक्वल टू 1, एंड डेसिमल पार्ट के बाद जो दोनों इक्वेशन में नंबर हैं वो सेम है, और सब्ट्रैक्शन के बाद वी विल गेट 0 0 0 0। सो x is equal to 1 over 999, which is the fraction of two integers. Fraction of two integers, which is the definition of rational number. टू इंटीजर्स की फ्रैक्शन है जिसमें 999 जो है वो डिनोमिनेटर में है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। हमने 0.001 जो कि एक रैकरिंग डेसिमल है इसको कन्वर्ट कर दिया है टू इंटीजर्स की फ्रैक्शन में, यानी ये रैशनल नंबर बन गया है। सो यहाँ से हमें पॉइंट क्लियर हो गया है। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग and recurring decimals are rational numbers। होप सो इस वीडियो को देख के आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम, किस बेस पे हम कह सकते हैं कि रेकरिंग डेसिमल जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं और इनको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।